मॉलिक्यूल्स में आपकी क्या क्या चीजें आती हैं? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स एंड और क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो carbohydrates, protein molecules, these are what biomolecules, or these natural products are known as primary metabolites. So let's study the classification. So classification में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग आते हैं। सबसे पहले तो आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन कैसे करें? सो कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स of carbon, hydrates of carbon. This means they have a general formula, that is general formula CnH2n whole n. ठीक है, H2O, CnH2O whole n. This is the general formula of carbohydrate, and these carbohydrates are widespread in nature. For example, plants की cell wall में आपको cellulose मिलेगा जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स अपना शुगर को जो स्टोर करते हैं या रिजर्व करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दे फॉर्म ग्लूकोज। ओके, सो ग्लूकोज इज अनदर एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड. So carbohydrates are involved in biological energy storage and transport system. So this is the process of photosynthesis. CO2 and water molecule fix and they form what? They form glucose. Now, while talking about a more accurate definition, so more accurate definition of carbohydrates are what? They are polyhydroxyaldehyde or the ketone. Polyhydroxyaldehyde or the ketone. For example, glucose is an aldose sugar. This means कि इसमें CHO group होगा. But fructose is also a sugar, but it is a ketose sugar. This means इसमें CO group होगा. समझ आ रही है बात? पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन क्यों बोल रहे हैं? यस, पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, यस मैम. यस. ओके, एल्डिहाइड मीन्स CHO group, ketone means CO group. Now carbohydrates are also called as saccharides. क्यों? क्योंकि they are sweet in what? Taste. शुगर केन को हम सैकेराइन शुगर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि सैकेराइन का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट. नाउ वी विल सी व्हाट क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम तो आता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड देन ओलिगो एंड पॉली. सो मोनोसैकेराइड्स मींस the sugars or the carbohydrates which cannot be broken into simpler compounds. Okay, so these are called as simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed. Now when we break some polysaccharide or the disaccharide, then water की presence में it breaks, but monosaccharide break नहीं होता चाहे water का addition कर लो. मतलब they cannot be hydrolyzed into smaller units. Okay, so examples of monosaccharides क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज. These are what examples of monosaccharides. Now monosaccharides can contain aldehyde group or the keto group. If aldehyde group, then aldose sugar. If keto group, then ketose sugar. Now the simplest monosaccharide is glyceraldehyde. ग्लिसरल्डिहाइड, अल्डिहाइड से ही समझ आ रहा है, इसमें CHO ग्रुप होगा. CHO ग्रुप होगा, so this is a CHO group. So this is a aldose sugar. This is a CO group. So this is a ketose sugar. Now you will say मैम यहाँ OH भी तो है, इसका क्या करें? The defining property या characteristic definition ही हमने कार्बोहाइड्रेट की ये बोली कि they are polyhydroxyaldehyde or the ketones. So aldehyde group है तो aldose sugar. Now this is a glyceraldehyde. इसका common name है या IUPAC name है. IUPAC name is 2,3-dihydroxypropanol. Why 2,3? aldehyde की प्रायोरिटी ज्यादा है, यहाँ से नंबरिंग होगी. So 2,3-dihydroxypropanol.
3 कार्बन है। नाउ इसको ही स्टैंडर्ड मान के D एंड L कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड शुगर क्या होती है, कौन सा ग्रुप होता है, देन कीटोस कौन सी होती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर कार्बन एटम्स क्या है, 2 है, 3 है, तो 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, पेंटोस, देन हेक्सोस, and 2,3 dihydroxypropanol, that is this is what aldo triose. Why aldo triose? क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन है। Now this is another example, ये कीटो शुगर का एग्जांपल है, 1,3-dihydroxypropanone, on means keto. So this is an example of keto triose. Why keto triose? Keto means keto group है, triose means 3 कार्बन। ये बात समझ आ रही है? अभी तक जो मैंने बोला शुरू से लेके यहाँ तक समझ आ रहा है? यस मैम। यस, सबको आ रहा है? सुश्री, कौरव, अनीशा, मनीषा? यस मैम। यस मैम। यस, गौरव समझ आ रहा है? ठीक है। Yes, ma'am. Yes. Now monosaccharides can be classified as D or L depending upon the position of hydroxyl group. Okay. Now you have to remember कि जैसे ये है, ठीक है, this is what a glyceraldehyde, and इस glyceraldehyde में अगर OH, ठीक है, OH आपका कहाँ पे है, this is second last carbon, क्योंकि तीन ही कार्बन का है, so first, second, third, so this is the second last carbon। अगर आप नीचे से देखोगे तो अगर OH on the right side है, then it is a D, okay, it is a D configuration। अगर ये लेफ्ट साइड है, मतलब यहाँ OH आ जाता आपका और यहाँ पे H रहता, तो it will be L, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये ग्लिसरल्डिहाइड को ही स्टैंडर्ड मान के किया हुआ है उन्होंने डिनोशन, D और L क्या होता है। सो D एंड L आपको अभी मैंने बताया क्या होता है। ओके, नाउ अभी हमें देखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डोज, मतलब CHO ग्रुप के बिलोंगिंग टू द D फैमिली, दैट इज OH, सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका राइट पे हो। समझ आ रही है बात? यस मैम। यस। नाउ मैंने आपको पहले भी बताया था, DL कैपिटल वाला और DL स्मॉल वाला, दीज आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये इक्वल क्यों नहीं है, इसका आंसर आप लोग ढूंढ के आओगे कल की क्लास में। व्हाट इज DL एंड D, कैपिटल D L क्या होता है और स्मॉल d स्मॉल l क्या होता है, ये दोनों चीजें अलग है। नाउ लेट्स सी, most of the sugars naturally occurring belongs to what, D family। remember the positive and negative sign indicates the optical activity, ठीक है, मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लीवोरोटेटरी, ये सब। नाउ D ग्लिसरल्डिहाइड, सेकेंड लास्ट पे OH है। अब इसके हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्डोज, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग हियर, अगर आपने एक कार्बन एटम बढ़ा दिया इस चेन में, तो आपका क्या बन गया, इरिथ्रोज एंड थ्रियोज। सो थ्रियोज जो होता है उसमें OH हमेशा एक साइड पे नहीं दूसरे साइड पे होते हैं, मतलब दोनों एक ही साइड पे नहीं होते, ऑपोजिट साइड में होते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इरिथ्रोज वाला चीज, तो इरिथ्रोज वाली चीज में आ जाती है दोनों OH सेम साइड पे। नाउ इरिथ्रोज में 4 कार्बन है, सेकेंड लास्ट में OH राइट पे है, इसलिए यहाँ पे हमने D लिखा है। सिंस थ्रियोज में OH दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो इसका नाम तो थ्रियोज ही, थ्रियोज का फॉर्मूला आपको याद ही रखना है, इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर आपको याद ही रखना है, तो ये सारे ड्रॉ करके ही याद होते हैं। बट D क्यों है, ये D इसलिए है कि D पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पे है। नाउ इरिथ्रोज के 2 आइसोमर्स कह लो, या इसका फर्दर क्लासिफिकेशन, तो 1 2 3 4 चेन कार्बन थे, अगर आप इसमें और इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो क्या हो सकता है, अगर आपने 5 कार्बन ले लिए तो 5 कार्बन एटम वाला राइबोज, कब, जब OH ग्रुप राइट साइड पे है तो D राइबोज। अगर आपका एरिबिनोज है, एरिबिनोज में क्या हो रहा है, फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, OH आपका लेफ्ट पे आ जा रहा है, सो एरिबिनोज। देन दिस इज जाइलोज, लाइजोज, इन सब के फर्दर क्लासिफिकेशन है। ये D फैमिली है, D फैमिली है मतलब आपको हर सेकेंड लास्ट पे OH राइट पे मिलेगा, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द D sugar shown above has an enantiomeric L counterpart, okay।
यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि अगर जैसे ये डी है तो इसका आपका एल ग्रुप क्या होगा, मतलब एल आपका क्या आइसोमर कौन सा होगा, ये एल आइसोमर हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज एल आइसोमर, क्योंकि OH आपका किस पे है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, नाउ these are the examples, another examples आपके क्या क्या दिए हुए हैं। द फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन मैंने आपको पहले बताया था, व्हेन यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एंड देन ड्रॉ दीज ग्रुप्स अक्रॉस दीज लाइंस, देन क्या आपका होता है, दे आर फिशर प्रोजेक्शन। सो मोनोसेकेराइड का फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर आपका, ये भी फिशर प्रोजेक्शन ही थे। ये है आपका क्या 1,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन कीटो, दिस इज डी नेगेटिव इरेथ्रोज। ओके, देन ये आपके क्या हुआ है, डी कीटोज की फैमिली को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डी कीटोज का क्या होगा, सेम है, डी है इसका मतलब OH बस राइट पे है। ठीक है, सो ये इसमें से 2-3 स्ट्रक्चर्स याद रखना कि अगर आपको एग्जांपल आ जाता है कि एक्सप्लेन 2 एग्जांपल्स ऑफ डी शुगर्स एंड द एल शुगर्स, है ना, तो आपको याद रहना चाहिए। एल्डोस के भी 2 एग्जांपल याद कर लो, डी कीटोस के भी। एल्डोस के कौन कौन से याद कर सकते हो, एरिथ्रोस थ्रियोस कर लो, और कीटोस में आप कौन से याद कर लो, रिबुलोस और जाइलोस कर लो। क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, मतलब ये 5 कार्बन के 5 कार्बन चेन है, इसमें सेकेंड लास्ट पे OH राइट पे है, तो आपको एक तो याद हो गया। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों में सेम है, थर्ड में डिफरेंस है, राइबोज में या रिबुलोज में आपका राइट साइड पे OH है ना, और इस वाले पे जो जाइलोज है इस पे लेफ्ट साइड पे है। ठीक है ना, नाउ जनरल प्रॉपर्टीज। सो ये बात समझ आई सबको, आई यस और नो? Yes, ma'am. यस, नाउ द जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हाउ दे रिएक्ट। ओके, सो सबसे पहले टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर ये रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं। सो टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, ये आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या this ammonical silver nitrate solution is टॉलेंस reagent। ये होता है सिल्वर, अमोनिया और OH। इसमें जब आप क्या आपका कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है अगर रिएक्ट करता है तो सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, टॉलेंस reagent is reduced by aldose, so this reaction is given by only aldehyde sugar जिसमें aldose ग्रुप होता है, एंड आपका मोनोसेकेराइड्स ऑक्सीडाइज हो जाता है, एल्डोनिक एसिड बनाता है, जिसके कारण आपका सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एल्डिहाइडिक शुगर्स की, ठीक है, या एल्डोस की, कि वो सिल्वर मिरर बनाते हैं। नाउ फेलिंग सोल्यूशन। सो फेलिंग सोल्यूशन दो, एक फेलिंग ए होता है, एक फेलिंग बी होता है ना, और दोनों का नेम अलग अलग है। एंड आपका इनिशियली ये ब्लू, एक होता है आपका ब्लू कलर का। तो जब आप मिक्स करते हो फेलिंग ए फेलिंग बी को, आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए दिया है कि फेलिंग सोल्यूशन बना रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो आपको पहले ब्लू कलर मिलता है, और ये ब्लू कलर को जब आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद आपका रेड कलर मिल जाता है। रेड कलर किसके कारण बनता है, Cu2 आपका पीपीटी बनती है, इस Cu2 दैट इज कॉपर ऑक्साइड के कारण आपका रेड कलर मिलता है। एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स, लेट्स सी। सो फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट में भी क्यूपेरिक आयन कॉम्प्लेक्स्ड विद द सिट्रेट आयन, तो ये भी मिक्सचर है 2-3 चीजों का। एल्डोज एंड कीटोज, यहाँ पे शुगर्स रिड्यूस करते हैं फेलिंग सोल्यूशन को भी, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को भी। ब्लू कलर इनिशियली होता है आपका फेलिंग ए फेलिंग बी का, जब आप दोनों को मिक्स करते हो तो ब्लू कलर बनता है। फिर आप अपना कार्बोहाइड्रेट डालते हो या कार्बोहाइड्रेट में दोनों को डालते हो, सो क्या होता है, आप हीट करते हो तो आपका ब्रिक रेड कलर की पीपीटी बनती है जो कि Cu2O की होती है, ठीक है ना। एंड इन एल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक मीडियम में जो भी आपका एल्डोज शुगर है, हम एल्डोज की बात कर रहे हैं, क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा एल्डोज और कीटोज के बीच का जो
इनिडायोल फॉर्म है, दैट इज OH तो है ही, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गई, इसलिए इनडायोल फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। नाउ रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं? सो रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो कि आपकी टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट्स वगैरह को रिड्यूस कर सकती हैं, ठीक है ना, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। सो रिड्यूसिंग शुगर्स में आपका प्री CHO ग्रुप होना जरूरी है, प्री CHO ग्रुप होना जरूरी है। कीटोन्स आपके टॉलेंस टेस्ट को नहीं देते हैं, ठीक है, कीटोन्स आपके टॉलेंस टेस्ट को नहीं देते हैं, ओनली एल्डिहाइड्स देते हैं। एंड फ्री CHO ग्रुप होगा तो दे आर व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट जिसमें हेमी एसिटल ग्रुप है, हेमी एसिटल, दिस इज CHO जब ऐसा हम बनाते हैं तो डेट इज हेमी एसिटल ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। नाउ नॉन रिड्यूसिंग, सो नॉन रिड्यूसिंग में क्या होता है आपका बाउंड या CHO ग्रुप जो होता है फ्री नहीं होता, तो वो रिएक्ट नहीं कर पाता, तो इट इज अ बाउंड ग्रुप जिसमें आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होता है। सो यहाँ पे क्या होता है, पहले रिड्यूसिंग शुगर्स की देखते हैं। दिस इज सो बिकॉज इन द aqueous solution there is an equilibrium between the hemiacetal and the open chain structure. It is a open chain form which get oxidized and equilibrium keeps on shifting to give more open chain form. However, the formation of acetyl linkage does not allow equilibrium, and those glycosides which contain acetyl linkage instead of hemiacetal do not give positive test. So अगर acetyl linkage हो जाती है, हम आगे पढ़ेंगे acetyl linkage क्या होती है, तो उसके कारण आपका जो टेस्ट है वो टॉलरेंस और बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देते हैं, जिसके कारण दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नाउ व्हेन यू रिएक्ट देम विथ ब्रोमीन वाटर, तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, टॉलरेंस रिएजेंट या टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डोज, है ना, फेलिंग टेस्ट कीटोज और फेलिंग एंड बेनेडिक्ट, कीटोज एंड एल्डोज दोनों देते हैं। नाउ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका क्या होगा, जो CHO ग्रुप है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू COOH ग्रुप, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, ओके, वो भी केमिकल रिएक्शन है ये भी। सो माइल्ड एसिडिक कंडीशन होती है pH 6, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, एल्डोनिक एसिड, एसिड वाई क्योंकि COOH ग्रुप आ गया है, सो दिस इज एन एल्डोनिक एसिड क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप आपका कन्वर्ट हो रहा है एसिड में, सो एल्डोनिक एसिड बन रहा है, इसका कॉमन नेम इज ग्लाइकोनिक एसिड। नाउ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके CHO ग्रुप तो COH में कन्वर्ट हो गई, OH ग्रुप भी COOH में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। So the reaction of aldose with nitric acid dilute nitric acid, which is a stronger oxidizing agent than bromine water. So bromine water is also an oxidizing agent and nitric acid is also an oxidizing agent. So क्या होगा यहाँ पे, CHO group and CH2OH दोनों ग्रुप आपकी कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, COH ग्रुप में। Now monosaccharides रिडक्शन, सो मोनोसेकेराइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है आपका, एल्डोज एंड कीटोज दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, NABH4 दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी प्रेजेंस में आपका मोनोहाइड्रेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजन के एडिशन के कारण एक H यहाँ एक H यहाँ, तो आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यस, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस। नाउ फेनिलहाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, सो फेनिलहाइड्राजीन दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें ओसाजोन बनता है, ओसाजोन आपको आ सकता है कि रिएक्शन लिखो जिसमें ओसाजोन बनता है, तो यहाँ क्या होता है, जो भी आपकी एल्डिहाइडिक शुगर है ना, क्या कार्बोहाइड्रेट है, अभी हम एल्डोज की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं फेनिलहाइड्राजीन के साथ। नाउ व्हाट इज हाइड्राजीन, NH2, ये वाला जो ग्रुप होता है ये हाइड्रोजीन है। नाउ फेनिल, फेनिल मींस बेंजीन, C6H5NH2, ओके, फेनिल हाइड्राजीन, जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, ये बनाते हैं ओसाजोन। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये वाले में NH इन C6H5 ऐड हुआ, तो दिस इज NH, आपका ये पूरा ऐड हो जाएगा माइनस वाटर मॉलिक्यूल। नाउ हियर आल्सो अगेन अनदर मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल्स, दूसरा मॉलिक्यूल भी यहाँ ऐड हो जाएगा
NH(C6H5). This is an OSA zone, phenyl OSA zone. Another molecule जो कि बच रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स थे, 2 ने रिएक्ट कर लिया, C6H5NH2 के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा। एक अमोनिया जो बचेगा अमोनिया के फॉर्म में रिलीज होगा और वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज होगा। So note that the 2 phenyl hydrazone groups at carbon 1 and 2 in the phenyl OSA zone, the third molecule of phenyl hydrazine is converting into what? Amine and aniline. Okay, now is used to oxidize the CH। ये सेम बात वही मैंने आपको भी बताई। OSA zones क्या होते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। OSA zones सॉलिड होते हैं, इनके बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरेंज क्रिस्टल्स बनते हैं और they can be isolated and purified. Okay, now you can see that in phenyl OSA zone ये रिएक्शन है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये आपका बता रहा है, ये ग्रुप हो रहा है ना, और जो अनअफेक्टेड पोर्शन है वो ये दिखा रहा है और जो अफेक्टेड पोर्शन है वो दिखा रहा है कि कौन कौन से अफेक्टेड पोर्शन। नाउ कार्बन 2 जो है आपका इज नो मोर अ कायरल सेंटर। व्हाई? क्योंकि कायरल सेंटर मतलब चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए, बट जैसे आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे सेम है, यहाँ सेम है, मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और ये वाला भी स्ट्रक्चर सेम। दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन एंड irrespective of the starting aldose having configuration at the 2 same phenyl OSA zone should result provided the configuration at the another carbon atom the same। This means कि कार्बन 2 अब कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, तो irrespective of the starting material आप कोई भी aldose ले लो, उसका कॉन्फ़िगरेशन C2 कार्बन में भले डिफरेंट हो, phenyl OSA zone तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे aldose लो। So now the D plus glucose, D plus mannose, which differ in configuration only at the C2, result in the same phenyl OSA zone. This means कि अगर यहाँ पे आपका this is D plus glucose, क्या है यहाँ पे OH राइट पे है, mannose में OH लेफ्ट पे, इसके बाद भी आपका phenyl OSA zone दोनों से सेम ही बन रहा है। So C2 का कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसा भी हो, आपका phenyl OSA zone तो बनेगा, मीन्स आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो। ठीक है, नाउ ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन। सो ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अपन कल से पढ़ते हैं। इसमें 2 रिएक्शंस और बची होंगी आई गेस, यस, एस्टर्स एंड ग्लाइकोसाइड। इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिट। क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन, हॉवर्थ, फिशर, बोट, ठीक है, चेयर, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, देन म्यूटर रोटेशन, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके बच्चों, समझ आया आज का? यस मैम। यस मैम, यस ये अनीशा। जो फेनिल OSA जोन में वो हाँ, जो सी कार्बन 1 है, वो कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं है। कौन सा कहाँ गया फेनिल OSA zone? देखो ये आपका एल्डोस जो लिया हुआ है ना, इसने ये चेन बनाई है, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये सिर्फ 2 ग्रुप्स दिखाए हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं, बट एल्डोज है। एल्डोज क्या होता है? CH2 CHO, दैट इज CH, यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं जस्ट CHO, यहाँ अगेन CHOH 3 बार एंड देन CH2OH 3 4 5, तो 4, यहाँ पे 4 होगा, 4 5 6। ओके, CHOH 4 बार आने के बाद CH2OH है, तो एक CHO वाला जो ग्रुप है इस पे तो एडिशन होगा ही होगा, दूसरी बार दूसरे CHOH वाले पे होगा। तो जब आप इसको देखोगे CHOH को, तो कार्बन 2 कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाले कार्बन पे भी OH ग्रुप अटैच्ड है, ऊपर वाले पे भी है, तो वो कायरल सेंटर नहीं है। 1 2, अब ये 4 लिखा है, इसका मतलब ये 4 बार जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो सेकंड वाला कार्बन होगा आपका, ये कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे भी COOH वाला ग्रुप सेम है,
तो एक भी ग्रुप अगर आपका सेम होता है तो क्या आपका कायरल ग्रुप होता है वो? नो मैम। नहीं होता ना, इसीलिए इन्होंने ये बात कही हुई है कि कौन सा ग्रुप यहाँ पे चेंज हो रहा है, कौन सा ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जी अब मैम। इनने यहाँ एन लिखा है, एन का मतलब कोई भी एल्डोज होगा। जैसे आप ले रहे हो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं, तो आपको यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन नीचे एक ऊपर है, तो 4 5 एंड 6 लिखना पड़ेगा। जी मैम। हाँ, तो उसमें से एक ग्रुप आपका कन्वर्ट होगा, एक कन्वर्ट नहीं हो। ठीक है, यस अनीशा? मैम थोड़ी वॉफरिंग हो रही थी तो सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा अच्छा, ओके। सो मनी